Okay, so have a
निकुंज आ रहा है मैसेज आवाज? હા જી हेलो। મારે પણ મેસેજ આવે છે. ओके ओके तो पेलू काले चिंतन भाई
Good morning, everyone. We will start the session within 5 minutes. Good morning, everyone. We are starting this session within 2 to 3 minutes. Hello, everyone, and very warm welcome to today's session. I hope that everyone is safe at home with their families and quarantine themselves during this global fight against the dreaded COVID-19 virus. There are still those who continue to do their jobs day in and day out. These are ones that we call the frontliners. These frontliners are doctors, nurses, medical personnel, police, military, and those people who continue to serve in essential establishments such as supermarket, grocery, drugstore, banks, and others. These are the heroes that we have today. I would like to show my gratitude to them and would also like to encourage my support
for these brave men and women who risk their lives every time as they report for the work. I will not stretch this topic and will move forward to our today's session. Myself, Sonia Lalwani, I'm working at Orange Technolab. Orange Technolab is in the IT segment since 18 years. Our major domain expertise is payroll and HRMS. Orange is serving in 32 countries across the globe. I would also like to draw your attention that our company is ISO certified, and as per the perspective of quality, and in next few couple of months, the company would also be ISO 27001 certified with the data security aspects. Furthermore to this, also has a vision to be CMMI certified in coming years. Now this session is based on how to troubleshoot import data process and how to complete the payment process with the help of Ultimatix Payroll and HRMS. We will primarily focus on how to complete the payment process, how to troubleshoot import data, followed by the question answer session. So without doing a further ado, let me please invite Mr. Nikunj so that he can continue the session. Nikunj, over to you. Thank you, madam. Thank you. Myself Nikunj Trivedi, and I am working last 6 years to Orange Webtech company, and I am as an implementation team member. आज का मेरा टॉपिक है पेमेंट प्रोसेस रिलेटेड, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर, और उसके साथ में मंथ लॉग का जो हमें प्रोविजन दिया गया है उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग दिखाएंगे कि हम कौन कौन से फ्लो इस पूरे वेबिनार में हम वर्क करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे अदर पेमेंट प्रोसेस पे वर्क करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हम पहले देंगे आपको। उसके बाद अलग अलग जो पेमेंट प्रोसेस के टाइप है वो हमको बताएंगे आपको, और उसके बाद जो सैलरी जो हम उसका पेमेंट प्रोसेस करेंगे उसको हम फ्लो करेंगे। उसके बाद जो अदर उसके टाइप्स है जैसे सैलरी सेटलमेंट, लीव एंकेशमेंट, रीएम्बर्समेंट और एक अदर अलाउंस बना के उसका भी हम पेमेंट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ये जितने भी हमने पेमेंट प्रोसेस हमने जो किए हैं उन सब के अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करके आपको व्यू कराएंगे। उसके बाद जो लास्ट नॉट द लीस्ट मंथ लॉग का प्रोविजन दिया गया है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की सैलरी जो बनती है उसको लॉक करवा सकते हैं, अटेंडेंस लॉक कर सकते हैं, फाइनेंशियल लॉक कर सकते हैं। ये बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स है, वो हम उसको आपको डीप में समझाएंगे। इसकी नेक्स्ट सैलरी जो अब स्लाइड बनेगी उसके अंदर उसको हम इंट्रोडक्शन देंगे पेमेंट प्रोसेस का। पेमेंट प्रोसेस एक नॉर्मल डेफिनेशन जो दी जाए पेमेंट प्रोसेस की, तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं जो सैलरी रिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन सैलरी रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन होते हैं। वो सारे ट्रांजेक्शन अल्टीमेटिस के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस और जितने भी ट्रांजेक्शन उसको मैनेज करके उसमें जो मैनेज किया जाता है उसको हम पेमेंट प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम कैसे इसके सैलरी को हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपका फ्लो दिखा देते हैं। सैलरी के अंदर हमें अदर पेमेंट प्रोसेस डिटेल में जाना है और उसमें पेमेंट प्रोसेस में जाना है। पेमेंट प्रोसेस में जाने से बाद जब नेक्स्ट स्लाइड ओपन करोगे आप, उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक व्यू कर रहा है, यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस सैलरी का जो है वो व्यू कर रहा है। पर उसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हम सैलरी का जब हम पेमेंट प्रोसेस वर्क कर रहे हैं तो जिस मंथ का सैलरी हम पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं उसकी सैलरी ऑलरेडी पेड होनी जरूरी है। मतलब उसका मतलब ये होता है कि अप्रैल मंथ की सैलरी जनरेटेड होनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल की मंथ की सैलरी पेड हो चुकी है और उसके बाद हम उसका पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद उसका ईयर सिलेक्ट करना है और प्रोसेस टाइप के अंदर सैलरी टाइप सिलेक्ट करनी है और एम्प्लॉय क्लिक करके गो बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएगा कि उसके अंदर हम जो बैंक डिटेल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की बैंक डिटेल होती है। तो आप जिस बैंक डिटेल में जाके पेमेंट करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइमरी बैंक डिटेल और सेकेंडरी प्राइमरी बैंक डिटेल दी गई है, तो आपको जिस बैंक में पेमेंट करना हो वहां आप कर सकते हो। और नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देखेंगे तो उसके अंदर दिखाई देगा आपको एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट गो बटन पे क्लिक करेंगे
तो जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी पेड हो चुकी होगी वहां पे सारे शो करना चालू कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी बैंक का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, वहां पे आप क्लिक करके सेकेंडरी बैंक का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आपको उसको पेमेंट करना है। और उसको वजह यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पेमेंट डिटेल दिख रही है सैलरी की, टिक मार्क करके सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जब स्लाइड ओपन करेंगे उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने पेमेंट प्रोसेस किया था सैलरी का, यहाँ पे उसका पेमेंट शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसेस टाइप के अंदर हमने सैलरी टाइप सिलेक्ट किया है इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप जब ओपन करेंगे उसके अंदर एक और हमारा और जो पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन दिया गया है वो है सैलरी सेटलमेंट। सैलरी सेटलमेंट नॉर्मली दो तरीके से होता है, आप उसको सैलरी में भी पेड कर सकते हैं या फिर उसको सैलरी में पेड नहीं करना है तो पेमेंट प्रोसेस थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे इफेक्ट ऑन सैलरी का ऑप्शन दिया गया है, यस करने पर आपको सैलरी में इफेक्ट आती है और नो करने पर आपको सैलरी में इफेक्ट नहीं आती है। नॉर्मली सैलरी सेटलमेंट का मैं आपको सिनेरियो बता दूं तो वो इस सिनेरियो में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर किसी मंथ की आपको बैकडेटेड इंक्रीमेंट दिया गया हो और उस मंथ के समझिए आपको दिया गया है Nikunj, और actually your आपको voice is not coming. मंथ के Can अंदर you repeat? उसका जनवरी से लगा के मार्च मंथ तक का आपको उसका पेमेंट प्रोसेस में जाके उसका सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट आप कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, इफेक्टिव मंथ में अप्रैल सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपको इफेक्ट में नो रखना है। और जब आप गो बटन पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय डिटेल बाइंड हो जाएगी और एम्प्लॉय डिटेल बाइंड होने के बाद वहां पे फ्रॉम मंथ और टू मंथ दिया गया है। आपको फ्रॉम मंथ में जनवरी है इसलिए 1 रखना है और मार्च मंथ जो 3 है वो रख के आपको टिक मार्क करके सेव कर देना है। जैसे ये आप सेव कर दोगे इसका सैलरी सेटलमेंट की एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसका पेमेंट प्रोसेस करोगे उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देख सकते हो, हेलो, इसके बाद जब सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो उसका पेमेंट प्रोसेस आप कर सकते हो। और पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको वही करना है, अप्रैल मंथ सिलेक्ट करना है। प्रोसेस टाइप में पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको और सैलरी सेटलमेंट सिलेक्ट करना है। सैलरी सेटलमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे वहां पे टिक मार्क का ऑप्शन आएगा, टिक मार्क करना है और वहां पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने जो सेटलमेंट किया था, जो आपकी अमाउंट बन के आई थी, वो अमाउंट यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस में सेव हो जाएगी। उसके नेक्स्ट स्लाइड में जो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट जो हमारा होता है वो लीव एनकेशमेंट के थ्रू भी हो सकता है। जो लीव एनकेशमेंट है वो भी दो तरीके से हो सकता है, आप सैलरी में उसका एनकेशमेंट का पेमेंट भी कर सकते हो और अदर में भी आप कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, इफेक्ट ऑन सैलरी में नो यस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम नो का सिलेक्शन करके एम्प्लॉय सिलेक्ट करके उसको गो करके एम्प्लॉय की जो गो करेंगे तो उसकी जो भी लीव एनकेशमेंट का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आपको उसके अंदर जितना भी बैलेंस एनकेश करना है वो डाल के आपको टिक मार्क करके सेव कर देना है। जैसे आप उसको सेव करोगे ऑटोमेटिकली ये लीव एनकेशमेंट बैलेंस सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको उसको पेमेंट करना है। पेमेंट प्रोसेस का वही फ्लो है, आपको सैलरी डिटेल में जाके अदर पेमेंट प्रोसेस में पेमेंट प्रोसेस जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, वहां पे अप्रैल मंथ सिलेक्ट करना है। अप्रैल मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट टाइप में लीव एनकेशमेंट सिलेक्ट करना है। ये याद रखना है, हमें जब भी लीव एनकेशमेंट करते हैं तो उसका लीव एनकेशमेंट का प्रोसेस टाइप सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद गो करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे जो हमने लिंक एनकेशमेंट किया था उसकी डिटेल वहां पे नीचे बाइंड हो जाएगी। उसके अंदर उसकी जो जो अमाउंट थी लीव एनकेशमेंट की वो आ जाएगी। उसको आपको जो उसके बाद उसका चेक बॉक्स में टिक मार्क करके उसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये सेव करते ही वो तुरंत उसका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो उसके अंदर उसका जो पेमेंट हो चुका है वो वहां पे शो कर रहा है। जो हमने यहाँ पे ऊपर प्रोसेस टाइप में ली एनकेशमेंट सिलेक्ट किया है इसलिए अप्रैल मंथ का जो ली एनकेशमेंट जो सेव हुआ है वहां पे नीचे शो कर रहा है। उसके बाद की आप स्लाइड देखेंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिएम्बर्समेंट के थ्रू भी हम पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। उसका भी बिल्कुल स्लो, बिल्कुल इजी फ्लो है। आप एम्प्लॉय उसको लीव एप्लीकेशन
रीइंबर्समेंट एप्लीकेशन करेगा, उसमें जैसे यहाँ पे मेडिकल रीइंबर्समेंट दिखा रहा है, वहां जाके उसका एप्लीकेशन करेगा, और एप्लीकेशन सेव करने के बाद आप जब उसका मैनेजर होगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे, जब उसका अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने से पहले उसको इफेक्ट ऑन सैलरी के अंदर नो बटन पे क्लिक करना जरूरी है, तभी वो उसको पेमेंट प्रोसेस में उसको ले पाएगा। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप उसका ये पेमेंट रीइंबर्समेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वापस आपको वही फ्लो फॉलो करना है। सैलरी डिटेल के अंदर अदर पेमेंट प्रोसेस में जाना है, पेमेंट प्रोसेस में जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, हमें वापस से उसमें मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है, और वहां पे प्रोसेस टाइम में रीइंबर्समेंट सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, हम अभी रीइंबर्समेंट देख रहे हैं, तो रीइंबर्स सिलेक्ट करके एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन क्लिक करने के बाद वहां पे जो हमने पेमेंट प्रोसेस किया, रीइंबर्समेंट किया था अप्रूव, वो यहाँ पे अमाउंट उसकी यहाँ फिलअप होके आ जाएगी, उसकी अकाउंट डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। आपको चेक बॉक्स पे टिक करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो आप चेक करोगे, जो हमने एंट्री सेव हो चुकी है, उसकी नीचे एंट्री आपको शो करेगी, जो आप नीचे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एंट्री जो सेव की हुई हमने इसमें मई मंथ में, वो वहां पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इसके बाद आपका जब चेक करेंगे तो ये सारे अलग अलग फ्लो हो गए जो हम नॉर्मली अपने यहाँ पे यूज करते हैं। पर एक और फ्लो है जो हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। कई कंपनी में ऐसा भी होता है कि ये अलग अलग पेमेंट प्रोसेस के थ्रू अलग एक और पेमेंट भी होता है, जैसे कि इंटरनेट अलाउंस दिया जाता है, और या फिर अलग अलग इंसेंटिव अलाउंस दिए जाते हैं। तो वो अलाउंस का भी वो पेमेंट कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू, मीन्स सैलरी के पहले या उसके बाद आप उसको इंपोर्ट करके उस अलाउंस का आप पेमेंट प्रोसेस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलाउंस बनाया गया है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव अलाउंस, और वो अलाउंस के अंदर आपको और बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स दी गई है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलाउंस का नाम दिया है, यहाँ पे कैलकुलेट ऑन के अंदर हमने इंपोर्ट सिलेक्ट किया हुआ है, आपको भी यहाँ पे इंपोर्ट सिलेक्ट करना है, और उसमें टाइप में अर्निंग सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर ग्रेड वाइज का भी ऑप्शन दिया गया है। जो ग्रेड वाइज ऑप्शन है, वहां जाके सारे ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। मोर सेटिंग के अंदर वहां पे आपको एक्टिव तो ऑलरेडी होगा ही, आपको नॉन इफेक्ट ऑन सैलरी पे टिक मार्क भी करना है। नॉट इफेक्ट ऑन सैलरी होने के बाद ही उसका पेमेंट प्रोसेस हो पाएगा। उसके बाद एक और सेटिंग्स जो वहां पे दिख रही है आपको। Nikunj, can you hold on? ओके, Just a minute. Hello. Just hold on. Actually, we are getting the message from the audience that they are not able to hear properly. So, hello. हेलो Hello, everyone. Are you able to hear the proper? Hello. हेलो Ashit, can you reply on the chat that you are able to hear the voice? Okay, we can hear you. Continue, Nikunj. ओके, थैंक यू मैम। नाउ आप देख सकते हैं वहां पे अलग अलग एक सेटिंग दी गई है, एक्टिव और नॉन इफेक्ट ऑन सैलरी। तो वो टिक मार्क आपको करनी जरूरी है, इसके बिना आप पेमेंट प्रोसेस उसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पेमेंट प्रोसेस के अंदर नॉन इफेक्ट ऑन सैलरी कंपोनेंट टिक मार्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक और टिक मार्क आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन टीडीएस। इफेक्ट ऑन टीडीएस हम इसलिए रखते हैं कि ये अमाउंट जो आप इंपोर्ट करोगे अलाउंस के थ्रू, वो आपको जो फॉर्म 60 के अंदर आपको जो शो करानी है, तो उसके लिए टिक मार्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दो एक और इम्पोर्टेंट जो टिक मार्क नीचे आप देख पा रहे हैं, वो है इफेक्ट ऑन ईएसआईसी और ऑटो डिडक्ट टीडीएस। ये दो जो टिक मार्क है वो इसलिए जरूरी है कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय का अलाउंस का, परफॉर्मेंस इंसेंटिव अलाउंस, उसका पेमेंट में आपको ईएसआईसी या टीडीएस डिडक्ट करवाना है सेपरेटली।
तो इसके लिए आप ये टिक मार्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैल ऑन इंपोर्ट डेटा वैल्यू। ये टिक मार्क करने के बाद आप एम्प्लॉय जब सैलरी करेगा उसके बाद भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम इंपोर्ट करने के बाद सैलरी करते हैं और फिर आगे वर्क फ्लो होता है, पर ये टिक मार्क करने के बाद आप सैलरी करने के बाद भी इंपोर्ट करके उसका पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो। यही इसकी खासियत है। उसके बाद जब आप सेव कर दोगे तो उसके बाद आपको उसको एम्प्लॉय को वो असाइन करना पड़ेगा ये अलाउंस, और एम्प्लॉय को असाइन करने के लिए ग्रेड वाइज में या फिर इंक्रीमेंट से जाके आप उसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्लो आता है उसमें आता है हम इंपोर्ट करते हैं जो हमने ये अलाउंस बनाया है परफॉर्मेंस इंसेंटिव अलाउंस, उसको हम इंपोर्ट करेंगे एक्सेस के थ्रू। एक्सेस शीट के अंदर इंपोर्ट करने के लिए ऊपर एक्सेस शीट दी गई है, उसके अंदर आपको जो हमने अलाउंस बनाया था उसका शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखना है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस इंसेंट आईएनसी जो हमने दिया हुआ है। और कमेंट को कॉलम को आपको कंपल्सरी रखना है, वहां पे लिखे नहीं चलेगा पर कॉलम जरूरी है, जो मैंडेटरी है वो आपको रखना है। फिर उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल में इंपोर्ट डेटा में जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है और सैलरी टैब में जाना है। वहां पे मंथली अर्न डिडक्शन जो रेडियो बटन है उसको टिक मार्क करना है और ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। वहां पे हमने जो शीट बनाई थी उसका शीट नेम वहां पे पेस्ट करना है और रो नंबर आपको वहां पे टाइप करना है। समझिए कि यहाँ पे आप जो रो आपको इंपोर्ट करना है तो 2 और 2 वहां पे लिख के आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये इंपोर्ट करोगे वो इंपोर्ट उसके उनके इंपोर्ट डेटा में सेव हो जाएगी। उसके बाद जो फ्लो आता है वो है एम्प्लॉय की सैलरी, जो आप नेक्स्ट सैलरी में स्लिप नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे। यहाँ पे अप्रैल मंथ की सैलरी हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली या मैनुअली दो तरीके से आप सैलरी कर सकते हो। यहाँ पे हम मंथली कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किया है, गो बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे हम टिक मार्क करके उसका सैलरी प्रोसेस करेंगे। सैलरी प्रोसेस करने के बाद अब जब आप चेक करोगे तो हम उसका अलग प्रोसेस टाइप बनाएंगे, जो आप नेक्स्ट देख सकते हैं। प्रोसेस टाइप, प्रोसेस टाइप एक तरीके से एक ग्रुप होता है जो अलग अलग जो नॉन इफेक्ट कंपोनेंट होते हैं उसका आप जो पेमेंट एक साथ करना चाहते हो तो उसका एक ग्रुप बना के उसका नाम दिया जाता है। और जो जो नॉन इफेक्ट का सैलरी कंपोनेंट है आपको पेमेंट करना उस पर टिक मार्क किया जाता है, उसको अब सेव किया जाता है। यहाँ पे हम इंसेंटिव नाम से एक अलाउंस बना एक प्रोसेस टाइप बना रहे हैं और हमारे जो इंसेंटिव नाम से जो हमने इंपोर्ट का अलाउंस बनाया था उस पर टिक मार्क करके उसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं वहां पे आपको सेव हुआ दिखाई दे रहेगा। जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है ये यहाँ पे सेव हो चुका है। और उसके बाद ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आपने जो इंपोर्ट की है अमाउंट उसका ईएसआईसी और टीडीएस का कैलकुलेशन किया जाएगा। जो आपको ईएसआईसी टीडीएस कैलकुलेशन करना है तो आपको तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी, अथवा तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके अंदर जाने के लिए आपको सैलरी डिटेल के अंदर अदर पेमेंट प्रोसेस में ईएसआईसी टीडीएस कैलकुलेशन में जाना होगा, ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। मंथ में आपको अप्रैल में करना है तो हमें अप्रैल सिलेक्ट करना होगा, अलाउंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे उसकी जो इंपोर्ट की थी वो वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। आपको यहाँ पे जो ईएसआईसी या टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट करवानी है तो वो डिडक्ट करने की अमाउंट यहाँ पे डाल के आपको टिक मार्क करके उसको सेव कर देना है। जैसे ये सेव हो जाएगा अमाउंट, उसके अंदर ये कैलकुलेशन इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। जब आप उसका पेमेंट प्रोसेस करोगे तब वो उसमें से डिडक्ट होके आएगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सैलरी डिटेल के अंदर अदर पेमेंट प्रोसेस में जाना है, उसके अंदर पेमेंट प्रोसेस में जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। हमें अप्रैल मंथ का पेमेंट प्रोसेस करना है तो अप्रैल सिलेक्ट करेंगे, यह सिलेक्ट करेंगे। और प्रोसेस टाइप में याद रखिए हमने जो प्रोसेस टाइप बनाया था हमने वही प्रोसेस टाइप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमें एम्प्लॉय सिलेक्ट करके गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय की जो डिटेल थी जो इंपोर्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी और उसका जो टीडीएस जो हमने कैलकुलेट किया होता तो वो डिडक्ट होके उस यहाँ पे शो करता। यहाँ पे हमने कोई टीडीएस ईएसआईसी नहीं रखा है तो यहाँ पे फुल अमाउंट आ रही है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करके उसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आप उस यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पेमेंट प्रोसेस किया था उसका यहाँ पे शो कर रहा है अमाउंट पूरी। अब इसके बाद
ये जो हमने पेमेंट प्रोसेस कर दिया है उसका अलग अलग जो रिपोर्ट का व्यू देखना है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका फ्लो हमें पाथ दिया हुआ है। रिपोर्ट के अंदर अदर रिपोर्ट में जाना है, अदर रिपोर्ट के अंदर पेमेंट्स रिपोर्ट है, वहां पे जाना है एंड वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे बहुत सारे रिपोर्ट के अलग अलग प्रोसेस टाइप दिए पेमेंट प्रोसेस दिख रहे हैं आपको। वहां पे आपको हमने जो पेमेंट हमने किए हैं, जैसे सैलरी, लीव एनकेशमेंट, सेटलमेंट और रियम्बर्समेंट, और या पर्टिकुलर प्रोसेस टाइप बना के हमने जो किया था, उन सभी का हम सिलेक्शन करके उसका जो पेमेंट किया उसका हम रिपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देखेंगे तो हमने यहाँ पे सैलरी जो हमने सिलेक्ट किया है पेमेंट प्रोसेस के अंदर, और वहां पे फाइंड करके एम्प्लॉय टिक मार्क करके उसको हमने जनरेट किया है, प्रीव्यू किया है। और जैसे प्रीव्यू करते हैं उसका नेक्स्ट स्लाइड में उसका व्यू देख सकते हैं आप रिपोर्ट का। उसी तरह आप नेक्स्ट स्लाइड में सैलरी सेटलमेंट का है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी सेटलमेंट के लिए भी यही सेम फ्लो है। पेमेंट प्रोसेस टाइप के अंदर सैलरी सेटलमेंट सिलेक्ट करना है और उसके बाद एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। फाइंड बटन क्लिक करके एम्प्लॉय टिक मार्क करके उसको एक्सपोर्ट या प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे आप करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पे पूरा शो कर रहा है जो हमने सैलरी सेटलमेंट के लिए यूज किया था। यहाँ पूरे इसमें डिटेल भी देख सकते हो। उसके बाद जो न्यू एक और रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं वो है लीव एनकेशमेंट। जो हमने लीव एनकेशमेंट पेमेंट प्रोसेस किया था, वो पूरा पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे उसी तरह सेम फ्लो है। फाइंड क्लिक करके एम्प्लॉय क्लिक करना है, आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसका भी एक रिपोर्ट व्यू हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसकी अमाउंट या सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप होके आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद सेम एक और चीज है, वही रिपोर्ट है, उसमें रिएम्बर्समेंट रिपोर्ट है जो हमने बनाया था, उसका पेमेंट प्रोसेस किया था और वो पेमेंट प्रोसेस का आपको रिपोर्ट निकालना है। तो वही फाइंड बटन पे क्लिक करके एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, टिकमा करके प्रीव्यू या एक्सपोर्ट करना है। जैसे आप करोगे वहां पे वो रिपोर्ट आपको व्यू होना चालू हो जाएगा, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी दिखेगा। जैसे आप ये प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वही रिपोर्ट, उसका डिटेल रिएम्बर्समेंट की सारी यहाँ पे रिपोर्ट में आप व्यू कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने जो प्रोसेस टाइप बनाई थी जो परफॉर्मेंस के लिए, वही प्रोसेस टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वो उसका जो डिटेल आपको देखना है तो फाइंड बटन पे क्लिक करना है और एम्प्लॉय टिक मार्क करके प्रीव्यू या एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ये आप एक्सपोर्ट या प्रीव्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं उसका व्यू आप देख सकते हैं रिपोर्ट का, और रिपोर्ट में उसकी डिटेल वहां पे दिखाई देगी। ये रहा पूरा फ्लो पेमेंट प्रोसेस का। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्लिप। हमने जो पेमेंट किया है, जो हमने अभी जो प्रोसेस टाइप में हमने पेमेंट किया था, वो जो इंसेंटिव था, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, उसका जो पर्टिकुलर रिपोर्ट निकालना है, तो उसका यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, फाइंड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय बाइंड हो चुका है, आपको टिक मार्क करना है। और ये रिपोर्ट कहाँ से पाथ मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट के अंदर सैलरी में जाना है और सैलरी में अंदर पेमेंट स्लिप, ये पाथ पे जाने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट होगा। और वहां पे जाके आपको ये यहाँ पे प्रोसेस टाइप है, जो वहां पे आपको ये जो हमें पाथ बना पेमेंट बना है प्रोसेस टाइप, वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो एम्प्लॉय को टिक मार्क करके उसको रिपोर्ट व्यू करना है। जैसे आप रिपोर्ट व्यू करोगे या तो यहाँ पे उसकी पेमेंट स्लिप शो कर रही है, देख पा रहे हैं आप। उसके अंदर यहाँ पे हमने कोई ईएसआईसी डिडक्ट नहीं करवाया, यहाँ पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाया, तो यहाँ पे नॉर्मल जो उसकी अमाउंट थी वो शो कर रही है। ये एक अलग से आपका अदर पेमेंट जो किया है आपने, उसका अलग से पेमेंट स्लिप बन जाती है, इसलिए ये यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे उसका पूरा वहां पे शो कर रहा है, उसका नाम, डिटेल्स, मंथ, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अभी ये पेमेंट प्रोसेस का जो फ्लो था यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद जो फ्लो आता है वो है मंथ लॉग का। मंथ लॉग नॉर्मली ये फ्लो हम इसलिए यूज करते हैं कि एचआर पर्सन जो टीम होती है, जो अपना सैलरी प्रोसेस खत्म करने के बाद उसमें कोई चेंजेस ना हो, या फिर उसका फाइनेंशियल खत्म होने के बाद उसमें कोई चेंजेस ना हो, उसको रोकने के लिए ये हमने फ्लो बनाया गया है जो हम पेरोल में यूज करते हैं। इसका ये फ्लो पाथ हम ये बताते हैं कि सैलरी डिटेल में मंथ लॉग में क्लिक करना है। जैसे आप मंथ लॉग पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टैब दिए गए हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट आपको दिखा रहे हैं सैलरी लॉग। सैलरी लॉग के अंदर नॉर्मली ये होता है कि
एक बार सैलरी कंप्लीशन हो जाने के बाद एचआर पर्सन उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते, तो उस केस में उसको हम लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए उसका मंथ सिलेक्ट करना होता है, ईयर सिलेक्ट करना है, और गो बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे स्टेटस के अंदर अनलॉक दिखा रहा है, मतलब अभी उसको लॉक नहीं किया गया है। आपको जो यदि लॉक करना है तो ड्रॉप डाउन में लॉक सिलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा सैलरी, और उसके बाद कोई भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा सैलरी को। उसी तरह आपको उसको अनलॉक करना हो तो अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉक करने के बाद उसका डिटेल यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, और आप उसी तरह उसको अनलॉक भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है जो है हमारी स्लाइड में वो है फाइनेंशियल लॉक। फाइनेंशियल ईयर मतलब जब एक पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर कंप्लीट हो जाता है, जैसे लास्ट 2019-20 कंप्लीशन हो चुका है और उसके अंदर आपको नहीं चाहते कि कोई भी चेंजेस हो, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर में 19-20 सिलेक्ट करके उसको लॉक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उसके बाद उसके डिक्लेरेशन या फिर पर्टिकुलर कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। और उसी की तरह हम जिस मंथ का फाइनेंस ईयर आपको अनलॉक करना है तो वो अनलॉक भी आप इसी तरह से कर सकते हो, जो दोनों तरीके हम यहाँ पे शो कर रहे हैं आपके सामने। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है जो आप देख पा रहे हैं उसके अंदर है पब्लिश सैलरी स्लिप। पब्लिश सैलरी स्लिप इसलिए यूज होता है कि एचआर पर्सन जब सैलरी टाइम उसमें से में कई बार थोड़ी बहुत चेंज भी होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि एम्प्लॉय डायरेक्ट उनकी सैलरी स्लिप व्यू कर पाए। तो हम क्या करते हैं, ईएसएस लॉगिन एम्प्लॉय सैलरी व्यू न कर पाए, इसलिए पब्लिश एंड अनपब्लिश का प्रोविजन रखा गया है, जिससे एम्प्लॉय जब तक एचआर पर्सन उसकी सैलरी एम्प्लॉय की पब्लिश ना करे तब तक वो अपने ईएसएस लॉगिन में पर्टिकुलर मंथ की सैलरी स्लिप वो शो ना कर पाए। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो आपको प्रोविजन करने के लिए मंथ सिलेक्ट करना है, ये टैब सिलेक्ट कर देना है, सैलरी व्यू मंथ ईयर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके अंदर आप देख सकते दो टाइप के हैं, सैलरी सेटलमेंट और उसके बाद ये सैलरी स्लिप का भी है, दोनों चीजों का है, अलग अलग दोनों तरीके से आप सेम फॉर्मेट है पब्लिश करने का, वो दोनों यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल स्टेटस है, इसलिए पब्लिश एंड अनपब्लिश सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको जो भी एम्प्लॉय की सैलरी पब्लिश करनी है या फिर अनपब्लिश करनी है, टिक मार्क करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम पब्लिश कर रहे हैं टिक मार्क करके, जैसे हम पब्लिश पे क्लिक कर रहे हैं ये अनपब्लिश यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे जो नेक्स्ट स्लाइड आप ओपन करोगे वहां पे वो सारी चीजें पब्लिश हो जाएगी, और जो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाओगे ये हो गई, यहाँ पे सारी पब्लिश हो चुकी है, मतलब ये पब्लिश हो चुका है पूरा। उसी तरह जो हमारी इस तरह से आप अनपब्लिश भी उसको कर सकते हो। देखिए जो सैलरी स्लिप जो हो गई है पब्लिश, वो एम्प्लॉय को अपने डैशबोर्ड में देखने के लिए यहाँ पे होम पेज में डैशबोर्ड के अंदर क्विक एक्सेस सैलरी स्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको इस तरह से उनकी सैलरी स्लिप व्यू होगी। उसके बाद स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि वहां पे periodically लॉक फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन उसलिए होता है कि कई बार एचआर पर्सन अपने एम्प्लॉय को जब फाइनेंशियल ईयर के लिए जब डिक्लेरेशन अपना जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं तो उसके लिए उनको डेट दी जाती है कि पर्टिकुलर डेट वो स्टार्टिंग ईयर भी हो सकता है और लास्ट फाइनेंशियल एंड में भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4/2020 और 30/6/2020 के अंदर हम यहाँ पे मंगवाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं फाइनेंशियल सिलेक्ट करने के बाद, और जैसे ऐड किया है हमने तो अब एम्प्लॉय अपना आईटी डिक्लेरेशन ईएसएस लॉगिन में जाके कर पाएंगे। अदरवाइज वो वहां पे सेव बटन का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेट ऐड कर चुके हैं और तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट करने पर उसके बाद ये आप देख सकते हैं फॉर्म 16 जो गवर्नमेंट साइट्स होती है वहां पे अभी फॉर्म 16 के अंदर वहां से अलग से एक रिपोर्ट जो फॉर्म 16 मिलते हैं, वो फॉर्म 16 रिपोर्ट को आपको अपने पेरोल के अंदर उसमें दिखाने के लिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग अपलोड पार्ट ए दिया है, अपलोड पार्ट बी और 12 बी दिया गया है। तो आप यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट साइट से जो पीडीएफ फाइल मिलती है वहां पे आपको उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना के नेम सेव करके उसको ब्राउज करना है और ब्राउज बटन पे अपलोड करके सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और वो आपको व्यू करने के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ ऑप्शन दिया गया है
जो है फॉर्म 16 पब्लिश, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय को जो वो अपलोड किए हैं वो उनको ESS लॉगिन के साइड रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ में अनअपलोडेड लिखा हुआ है, गो बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे सारे अनअपलोडेड आ चुके हैं। आपको जिनको जो डॉक्यूमेंट देख पाए उसके लिए जो पब्लिश करना है उसको रेडियो चेक बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिश करोगे वही एम्प्लॉय अपने जाके वहां पे ESS लॉगिन में जाके फॉर्म 16 वो रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा जो गवर्नमेंट साइड से लिया गया है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अनलॉक अटेंडेंस का दिखाया गया है। अटेंडेंस अनलॉक और लॉक क्या होता है, जब नॉर्मली एम्प्लॉय की अटेंडेंस एक बार आ जाए, जब सैलरी कंप्रेशन स्टार्ट होने जाता है तब HR पर्सन अटेंडेंस को लॉक कर दी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अटेंडेंस उसमें चेंजेस ना हो जाए, इसलिए हम अटेंडेंस लॉक करते हैं। डोनर मली गया हुआ है तो जो लो अटेंडेंस को हम लॉक कर देते हैं और अटेंडेंस लॉक करने के लिए मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है, गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे वहां पे एम्प्लॉय लिस्ट वहां पे बाइंड हो जाएगी। आपको जिस एम्प्लॉय का जो लॉक करना है आपको वो टिक मार्क करके लॉक बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉक बटन पे क्लिक करोगे वहां पे वो सारे एम्प्लॉय की अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। और उसके बाद जब भी आप एम्प्लॉय मास्टर में इन आउट में जाके कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि वहां पे ऑलरेडी अटेंडेंस लॉक हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने लॉक किया है, यहाँ पे डिटेल वहां पे आपको दिख रही है कि ये ऑलरेडी लॉक हो चुकी है जो हमने लॉक की। और उसके बाद ये ऑलरेडी लॉक हो जाएगा। उसी तरह हम उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। जोड़े 5-6 तो 10 मिनट आपको હું તમને અપડેટ કરાવું। थैंक यू सो मच। आपको इस पूरे वेबिनार में यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें support@orangeWebTech पे मेल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कर सकते हैं। Now move to एक सेकंड निकुंज, just hold on. Hello team, actually I'm getting your voice. Please mute your mic. Carry on. તમે વિજલ કોડ નું પતા है तो હું ત્યાં સુધી 10 મિનિટમાં તમ અપડેટ કરું તમને। ઓકે Hello Sonia, it is hand over to you. Yeah. So we are moving forward towards the second hour of this webinar. Let me please invite Mr. Ravi for his session. Ravi, you can continue. Thank you, Sonia, and thanks to all joiners for joining with us. Myself, Ravi Gajal from implementation team, and today's my session is regarding Orange Ultimatex import data process, which is one of the most useful function in Orange payroll because it will reduce your manually time efforts. So ज़्यादातर new employee registration, manually increment, manually left employee पे जो लगता है उसे हम कम कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा सेशन है। So let's start from the table of content. Point number 1, location of import process. Import process कहाँ से होगा उसके बारे में है। Point number 2, overview of the different types of import data process. काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हम देखेंगे। Point number 3, how to download the import data sample sheet. शीट कैसे डाउनलोड करना है सैंपल डेटा उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट एम्प्लॉय मास्टर डेटा प्रोसेस। न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे अपलोड करना है और कहां से उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 5, ट्रबल शूटिंग ऑन इंपोर्ट एम्प्लॉय मास्टर प्रोसेस।
एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एरर लॉग्स आएंगे उसे कैसे डील करना है, कैसे अपडेट करना है, उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 6, import salary structure after employee registration। एम्प्लॉय वाइज सैलरी स्ट्रक्चर कैसे अपलोड करना है, कहां से करना है, उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 7, इंपोर्ट एम्प्लॉय इंक्रीमेंट। एम्प्लॉय वाइज इंक्रीमेंट को भी हम अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 8, एम्प्लॉय अपडेट। आफ्टर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हम बाद में भी एम्प्लॉय के डेटा को अपडेट कर सकते हैं अगर कोई डेटा मिसिंग है या गलत है। पॉइंट नंबर 9, other formats overview, right? So let's start. Point number 1, location of the import data process, कहां से होगा। Then just go to the control panel, click on import data। जैसे ही आप import data पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप import data पे क्लिक करोगे, you can see the import data form। वहां पे आपको add बटन मिलेगा। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, यू कैन सी द फुल इंपोर्ट डेटा फॉर्म, जहां पे मॉड्यूल वाइज अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। जैसे कि मास्टर्स में दिया हुआ है मास्टर के रिलेटेड, ब्रांच मास्टर, ग्रेड मास्टर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन मास्टर, बैंक मास्टर, सिटी मास्टर। सो ये सारे बिफोर एनी टाइप ऑफ इंपोर्ट डेटा प्रोसेस, रेफरेंस के लिए हमें मास्टर अपलोड करना जरूरी है, जो यहाँ से होगा। देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय की रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय वीक ऑफ, अर्न डिडक्शन डेटा, एम्प्लॉय अपडेट, मेडिकल, लाइसेंस डिटेल्स, एसेट एलोकेशन। तो ये सारी एम्प्लॉय की रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम एम्प्लॉय से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद है लीव। लीव में भी लीव के रिलेटेड जैसे कि लीव ओपनिंग, लीव क्रेडिट, लीव अलाउंस डिटेल्स, लीव अप्रूवल भी हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं। फिर लोन में है लोन अप्रूवल, बॉन्ड अप्रूवल, लोन इंटरेस्ट सब्सिडी को भी हम अपलोड कर सकते हैं। सैलरी में सैलरी रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिफोर सैलरी जनरेशन हम हमें प्रिपरेशन के लिए जो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि अटेंडेंस सैलरी के लिए चाहिए तो हम इन आउट अटेंडेंस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैन्युअली सैलरी जनरेशन के लिए टोटल नंबर्स ऑफ प्रेजेंट डेज अपलोड करना है तो आप यहाँ पे मंथली प्रेजेंट को भी अपलोड कर सकते हो। मंथली अर्न डिडक्शन का भी ऑप्शन है, जो मंथली वेरिएबल और अलाउंस एंड डिडक्शन को भी आप अपलोड कर सकते हो। प्लस एडवांस इंपोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन अदर्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के रिलेटेड टैक्स डिक्लेरेशन दिया हुआ है, न्यूज अनाउंसमेंट इंपोर्ट। अगर ईएसएस पे आपको कोई न्यूज अनाउंस करनी है बल्क में तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। सेल्स टारगेट इंपोर्ट, इंसेंटिव इंपोर्ट इज अवेलेबल, जीपीएफ ओपनिंग, यूनिफॉर्म ओपनिंग। तो देन मशीन का एक पूरा मॉड्यूल अलग है, जिसके रिलेटेड भी काफी सारे इंपोर्ट्स फॉर्मेट हमने कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि मशीन डेली एफसीएनसी इंपोर्ट, मशीन ग्रेड वाइज ओवर टाइम इंपोर्ट, मशीन मंथली अलाउंस इंपोर्ट। नाउ जस्ट गो टू द पॉइंट नंबर 3, हाउ टू डाउनलोड द इंपोर्ट डेटा सैंपल सीट। अभी जो हमने मॉड्यूल वाइज जितने भी ऑप्शंस देखे वो सारी सीट सैंपल डेटा के साथ अवेलेबल है। उसे जस्ट डाउनलोड करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड सैंपल हियर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन पे सैंपल नाम का फोल्डर मिलेगा जिसे आप यूज कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट एम्प्लॉय मास्टर डेटा। न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बारे में है, उसे कैसे अपलोड करना है तो उसे देखने के लिए हम फॉर्मेट देख लेते हैं उसका। सो ये है पूरा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। जितने भी कॉलम्स हैं ऑल आर फिक्स। यहाँ पे ना तो हम कोई कॉलम डिलीट कर सकते हैं, ना कोई कॉलम नेम को एडिट कर सकते हैं, ना तो रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारा फिक्स है। उसके बाद कुछ कॉलम अगर आप देखोगे तो रेड कलर डिफाइन है, जो कंपलसरी है। एम्प्लॉय अपलोड करने के लिए हमें वो डेटा ऐड करना जरूरी है।
और कुछ सिलेक्टेड कॉलम से अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन के लिए आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे कि अल्फा कोड में कमेंट दिया हुआ है, कुछ कॉलम वाइज कमेंट आपको मिलेंगे जिसको आप देख के शीट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि अल्फा कोड में यहाँ पे दिया हुआ है ओनली अल्फा वैल्यू इफ योर एम्प्लॉय कोड इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर कंपनी में अल्फा न्यूमेरिक कोड एप्लीकेबल है देन अल्फा को आप अल्फा कोड पे और न्यूमेरिक को एम्प्लॉय कोड पे मेंशन कर सकते हो, राइट। और ऐसे ही डेट फॉर्मेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे डेट फॉर्मेट में कमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे डेट फॉर्मेट में दिया हुआ है DDMMMYYYY, तो जितनी भी सीट होगी जिसमें डेट फॉर्मेट अगर मेंशन करेंगे तो उसको ऑलवेज हम यही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, DDMMMYYYY। तो ऐसे काफी सारे कॉलम वाइज कमेंट दिए हुए हैं जिसे देख के हम शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ सिलेक्टेड कॉलम ऐसे भी हैं जो हमें बिफोर एम्प्लॉय इंपोर्ट हमें एप्लीकेशन में ऐड करना जरूरी है, जैसे कि ब्रांच मास्टर, ग्रेड मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर, डेजिग्नेशन मास्टर, एम्प्लॉय टाइप, बैंक नेम। तो ये सारी चीजें हमें बिफोर अपलोड हमें एप्लीकेशन में ऐड करना जरूरी है। जो हमें अभी मास्टर्स में जो ऑप्शंस देखे उसे हम अपलोड भी कर सकते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही शीट प्रिपेयर हो जाता है उसे अपलोड करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा पे आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्ट फाइल, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करना है, देन शीट नेम आपको यहाँ से लेना है, जैसे कि यहाँ पे है शीट, देन स्टार्ट रो नंबर टू एंड रो नंबर। जहां से भी शीट हम बनाएंगे, जैसे कि ये 3 रो नंबर 3 से शीट को बनाया हुआ है, 3 से लेके 8 तक। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टार्ट रो नंबर 3 to 8, देन क्लिक ऑन इंपोर्ट। अगर डेटा करेक्ट फॉर्मेशन में है, एक्यूरेट है, देन यू विल गेट द सक्सेसफुली मैसेज लाइक दिस। अगर डेटा फॉर्मेशन में कुछ गलत है या डेटा मिसिंग है या कोई कॉलम ऐड करना बाकी है, देन यू विल गेट one error message like this: there is something wrong in an Excel sheet, please see error logs and result tab। एरर को देखने के लिए आपको जस्ट ड्रॉप डाउन करना है, नीचे आपको एरर लॉग्स मिलेंगे, पूरा डिटेल्स में मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि एम्प्लॉय कोड कौन से एम्प्लॉय कोड पे है वो एम्प्लॉय कोड आएगा, एरर डिस्क्रिप्शन क्या प्रॉब्लम है वो भी डिस्क्रिप्शन में आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सुपीरियर कोड नॉट एग्जिस्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके हम शीट को वापस अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर वही एम्प्लॉय कोड वही रो नंबर को हम एक बार फिर से अपलोड कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, इंपोर्ट सैलरी स्ट्रक्चर। आफ्टर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय वाइज सैलरी स्ट्रक्चर अपलोड करने के लिए इसका यूज होगा। अब यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के लिए अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन से ही हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें बस पहले जितने भी कंपनी वाइज कंपनी में एप्लीकेबल जो अलाउंस एंड डिडक्शन है उसे पहले क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर में जाना है, कंपनी स्ट्रक्चर, अलाउंस एंड डिडक्शन मास्टर। देन जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एचआरए नेम, एचआरए कैलकुलेट ऑन बेसिक सैलरी, टाइप अर्निंग, देन ग्रेड वाइज एलोकेशन। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, अदरवाइज वो रुपीस पे भी आप रख सकते हो, और अपडेट। तो ऐसे जितने भी अलाउंस एंड डिडक्शन है उसे पहले क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट लोकेशन है रिपोर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में कस्टमाइज रिपोर्ट सिलेक्ट करना है और कस्टमाइज रिपोर्ट पे आपको रिपोर्ट टाइप यहाँ पे सैलरी रखना है। उसके बाद रिपोर्ट नेम आएगा, रिपोर्ट नेम अर्न डिडक्शन एक्सपोर्ट जो है सैलरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेट। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो डेट फॉर्मेट आ रहा है उसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उस टाइम पे जो भी डिफॉल्ट डेट आ रही होगी उसी को हमें कंटिन्यू करना है।
देन सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय और सिलेक्टेड एम्प्लॉय जिसका भी हमें सैलरी स्ट्रक्चर अपलोड करना है। क्लिक ऑन कॉलम, सिलेक्ट ऑल कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन गो। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करोगे आपको सैलरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेट एक्सेल में मिलेगा। लाइक सी, ये है पूरा सैलरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप देखोगे सैलरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 13 तक सारे कॉलम फिक्स है। ओके, जो डेटा हमें एप्लीकेशन में से ही यहाँ पे मिलेगा, तो हमें कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा। एप्लीकेशन में जो मास्टर है उसके बेस पे यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। जो भी नया आएगा वो आएगा कॉलम नंबर 14 से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कॉलम नंबर 14 से सारे अलाउंस एंड डिडक्शन मेंशन है जो हमने क्रिएट किए हुए होंगे, वो हमें यहाँ पे कॉलम वाइज मिलेंगे। हमें सिर्फ उसमें एम्प्लॉय वाइज जिसको भी एप्लीकेबल है जो वो यहाँ पे खाली मेंशन करना है। अगर HRA समझो परसेंटेज में है तो यहाँ पे मैं 25% जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर कोई रुपीस पे है तो रुपीस भी आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। और अगर कुछ नॉट एप्लीकेबल है, जैसे कि यहाँ पे PF 12%, जिसको भी एप्लीकेबल है वहां पे 12 है, नॉट एप्लीकेबल है वहां पे ब्लैंक रखेंगे, जीरो नहीं करना है, ब्लैंक रखना है फॉर नॉट एप्लीकेबल। जैसे ही शीट प्रिपेयर हो जाता है अपलोड करने के लिए, वही ऑप्शन इंपोर्ट डेटा पे एम्प्लॉय पे जाना है, एम्प्लॉय पे अर्न डिडक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अर्न डिडक्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ब्राउज से आपको फाइल सिलेक्ट करना है। उसके बाद शीट नेम आपको सिलेक्ट करना है। शीट नेम के बाद स्टार्ट रो नंबर टू एंड रो नंबर, जहां से हमने डेटा प्रिपेयर किया होगा वहां पे स्टार्ट रो नंबर टू एंड रो नंबर, एंड देन स्टार्ट कॉलम नंबर टू एंड कॉलम नंबर। यहाँ पे कॉलम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कॉलम नंबर 14 से दिया हुआ है, तो वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि कॉलम नंबर 1 से लेके 13 तक फिक्स है, जो भी कुछ नया है वो 14 से है, जितने भी अलाउंस एंड डिडक्शन, तो उसी को हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कॉलम नंबर 14 से कॉलम नंबर 18, 14, 15, 16, 17 एंड 18। देन क्लिक ऑन import। अगर डेटा फॉर्मेशन करेक्ट है then you will get the import data successfully message। Now point number 7, import employee increment। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट देखोगे तो सेम टू सेम सैलरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है, दोनों का फॉर्मेट सेम है, दोनों का प्रोसेस भी सेम है। यहाँ पे हमें जो सिर्फ ध्यान रखना है वो डेटा को मेंटेन करने में हमें इंक्रीमेंट के लिए थोड़ा अलग से करना है। जैसे कि ज्वाइनिंग डेट जो है वहां पे इंक्रीमेंट इफेक्टिव डेट मेंशन करना है। इंक्रीमेंट टाइप जो है वहां पे हम ज्वाइनिंग की जगह पे इंक्रीमेंट मेंशन करेंगे। एंट्री टाइप न्यू, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट अगर इंक्रीमेंट के टाइम पे चेंज हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पे अलग कर सकते हो। देन इंक्रीमेंटेड बेसिक, डायरेक्टली जो अमाउंट इंक्रीमेंटेड है वो ही यहाँ पे सीधा मेंशन करना है। अगर ग्रॉस के बेस के ऊपर सैलरी स्ट्रक्चर है तो ग्रॉस भी आप इंक्रीमेंटेड मेंशन कर सकते हो। देन अ पर्टिकुलर अलाउंस एंड डिडक्शन अगर इंक्रीज हुआ है तो वो भी अलग से आप यहाँ पे इंक्रीमेंटेड ऐड कर सकते हो। जैसे ही शीट प्रिपेयर होता है अपलोड करने के लिए सेम ऑप्शन जो हमने सैलरी स्ट्रक्चर के लिए, एम्प्लॉय पे अर्न डिडक्शन, सिलेक्ट फाइल, शीट नेम, स्टार्ट रो नंबर टू एंड रो नंबर एंड कॉलम नंबर, वही प्रोसेस जो हम सैलरी स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। देन पॉइंट नंबर 8, एम्प्लॉय अपडेट। आफ्टर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जो भी डेटा मिसिंग है या कुछ गलत है तो हम उसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय अपडेट से होगा। उसे ठीक से समझने के लिए हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है पूरा एम्प्लॉय अपडेट का फॉर्मेट। अगर आप डिफॉल्ट फॉर्मेट ओपन करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट जो कॉलम है वो फिक्स है, अल्फा EMP कोड रेड कलर है वो फिक्स है, और बाकी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हमें यहाँ पे एम्प्लॉय अपडेट की शीट को
जो भी अपडेट करना है उस हिसाब से हमें बनाना होगा अलग शीट में। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मुझे यहाँ पे पान एम्प्लॉय पान नंबर एंड यूएन नंबर को अपडेट करना है, तो वो सैंपल से मैं यहाँ पे कॉलम को ट्रांसफर करूंगा एक अलग शीट में। और फर्स्ट जो कॉलम है वो हमेशा फिक्स रहेगा अल्फा ईएमपी कोड। उसके बाद कोड वाइज हमें डेटा मेंशन करना है और अपलोड करने के लिए आपको एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय अपडेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट शीट नेम, select start row number to end row number and select start column number to end column number। यहाँ पे अगर आप अब देखोगे कि कॉलम नंबर 2 से 3 लिया हुआ है, वो क्योंकि अल्फा ईएमपी कोड वो फिक्स है, वो कोड एम्प्लॉय का चेंज नहीं हो सकता और बाकी सारी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो एम्प्लॉय कोड के रेफरेंस से। तो जो भी नया है वो कॉलम नंबर 2 पे है जो पान नंबर है, और कॉलम नंबर 3 है यूएन नंबर। सो यहाँ पे मेंशन है कॉलम नंबर 2 से 3, देन क्लिक ऑन इंपोर्ट। नाउ पॉइंट नंबर 9, अदर फॉर्मेट्स ओवरव्यू, जिसमें फर्स्ट है मंथली शिफ्ट रोटेशन वर्जन। डेट वाइज एम्प्लॉय की शिफ्ट जो भी चेंज होती है फ्रीक्वेंटली, उसे आप अपलोड कर सकते हो ये शीट से। बहुत सारे एक्चुअली ऑप्शन अवेलेबल है सिस्टम में, जैसे कि ऑटो शिफ्ट डिफाइंड शेड्यूलर। अगर शेड्यूल फिक्स है तो वो सिस्टम से भी होगा, लेकिन अगर कोई फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है वेरिएबल जो है, तो उसे आप अपलोड कर सकते हो शीट से। सिंपल सा शीट है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वहां पे आपको सीरियल नंबर मेंशन करना है, ईएमपी कोड, ईएमपी नेम, अल्फा ईएमपी कोड मेंशन करना है, कौन से मंथ में, वो मंथ, ईयर। एंड आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट से लेके 31st जो डेट है, जिस डेट पे जो भी शिफ्ट हो रही है उसे आप आईडी से मेंशन कर सकते हो, या तो शिफ्ट नेम से भी मेंशन कर सकते हो। जो नेम और आईडी आपको एप्लीकेशन में से शिफ्ट मास्टर में से मिलेगा, उसमें जो नेम है या आईडी है वही यहाँ पे मेंशन करना है। साथ में आप यहाँ पे आप कुछ जगह पे देखोगे कि शिफ्ट आईडी के साथ W दिया हुआ है, शिफ्ट आईडी हैज W। तो अगर शिफ्ट के साथ साथ अगर आपको वीक ऑफ भी सेट करना है तो आप W करके अपलोड कर सकते हो। अगर किसी का एग्जिस्टिंग वीक ऑफ चला आ रहा है, उसको कैंसिल करना है, तो आप शिफ्ट आईडी हैज C का भी यूज कर सकते हो। C मींस कैंसिल। और अगर कोई शिफ्ट आपको पर्टिकुलर डेट पे टेम्पररी चाहिए, देन शिफ्ट आईडी हैज T का आप यूज कर सकते हो, T फॉर टेम्पररी। जैसे ही शीट को अपलोड करने के लिए उसका जो लोकेशन है, इंपोर्ट लोकेशन इज सैलरी पे मंथली शिफ्ट इंपोर्ट आपको मिलेगा, जहां से आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है मंथली प्रेजेंट वर्जन, मंथली इंपोर्ट मंथली प्रेजेंट। अब ये जो फॉर्मेट है वो मैन्युअली सैलरी जनरेशन के रिलेटेड है। जो भी कंपनी मैन्युअली सैलरी जनरेशन फॉलो प्रोसेस कर रही होगी, वो ये शीट का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ मेंशन करना है अल्फा ईएमपी कोड, मंथ कौन से मंथ के लिए है, ईयर, टोटल नंबर्स ऑफ प्रेजेंट है। साथ में आप एरियर डेज भी रख सकते हो, एरियर्स मंथ, एरियर डे ईयर। अगर कैंसल वीक ऑफ कोई उस पर्टिकुलर मंथ के लिए करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। 1 इज फॉर एप्लीकेबल एंड 0 इज फॉर नॉट एप्लीकेबल। ओके, साथ में आप ओवर टाइम आवर्स भी मेंशन कर सकते हो। और जैसे ही प्रिपेयर होता है शीट को अपलोड करने के लिए, लोकेशन है सैलरी में मंथली प्रेजेंट। उसके बाद है लीव ओपनिंग। लीव ओपनिंग का फॉर्मेट आप देखोगे सिंपल है। आप सिर्फ यहाँ पे अल्फा ईएमपी कोड मेंशन करना है रेफरेंस के लिए, देन लीव नेम में आप यहाँ पे देखोगे प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव दिया हुआ है। ये सिस्टम में जो हमने डिफाइन किया हुआ होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट नेम PL या CL हमने मास्टर में क्रिएट किया हुआ हो, तो उसी नेम को यहाँ पे हमें मेंशन करना है। देन लीव डेज, फॉर डेट में लीव ओपनिंग इफेक्टिव डेट, अपलोड लोकेशन है लीव में
लीव ओपनिंग। उसके बाद है एडवांस इंपोर्ट वर्जन। एम्प्लॉय की एडवांस आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए अल्फा ईएमपी कोड मेंशन करना है, एम्प्लॉय नेम, फॉर डेट, एडवांस जो इफेक्टिव एडवांस डेट है वो हमें मेंशन करना है, एडवांस अमाउंट, साथ में आप रीजन नेम मेंशन करना है एंड रिमार्क्स। इंपोर्ट लोकेशन है उसका सैलरी, एडवांस, इंपोर्ट। उसके बाद है एम्प्लॉय लेफ्ट वर्जन। आप यहाँ पे बल्क में लेफ्ट एम्प्लॉय है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है रेफरेंस के लिए अल्फा ईएमपी कोड, देन लेफ्ट डेट मेंशन करना है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट डेट, अदर रीजन। फिर आप देखोगे काफी सारे ऑप्शन है, इज टर्मिनेट, यूनिफॉर्म रिटर्न, एग्जिट इंटरव्यू, नोटिस पीरियड, इज डेट। तो हर एक में 1 और 0 से हमने यहाँ पे मेंशन करना है। 0 इज फॉर नॉट एप्लीकेबल एंड 1 इज फॉर एप्लीकेबल। देन रिप्लेस रिपोर्टिंग मैनेजर। अगर समझो कोई मैनेजर लेफ्ट हो रहा है तो हम एप्लीकेशन में क्योंकि फीचर्स है कि रिपोर्टिंग मैनेजर हम असाइन करते हैं, तो अगर उसकी जगह पे जो भी कोड आप मेंशन करोगे तो रिपोर्टिंग मैनेजर को भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद है लीव लेफ्ट रीजन फॉर पीएफ एंड लेफ्ट रीजन। लेफ्ट रीजन फॉर पीएफ, पीएफ एज पर गवर्नमेंट जो रीजन है पीएफ के लिए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो फॉर ईसीआर जनरेशन। एंड लेफ्ट रीजन, जैसे ही शीट प्रिपेयर होता है इंपोर्ट करने के लिए, एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय लेफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस ऐसे काफी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। Later I will add in this presentation and share with you. Till then, thank you very much once again. पूरे सेशन में अगर आपको कुछ क्वेरी या सजेशन है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है support@orangeviptic.com and feedback@orangeviptic.com. Thank you. Now I over to Sonia. Yes, Sonia. Thank you so much, Ravi. Now we are moving forward to question answer session. If anybody has the questions, they can raise in the question bar. Few of the questions has been already provided the solution in the chat box. If anybody has questions, they can raise. Okay, one question is from Yakin Kumar Joshi. He's asking how can process bonus in payment process. I'm repeating this question. Yakin Kumar is asking how we can process bonus in payment process. Okay, is it regarding import से प्रोसेस करने के लिए या जो पेमेंट प्रोसेस जो पहले जो देखा वो एप्लीकेशन से? Yeah, Mr. Yashin, you can just whatever see. Currently, we have facility available in Orange that you can just do the bonus calculation throughout the system only. And if you're not following the calculation of the system standard which is providing, you can just make a input allowance, and we can do the payment process in the terms of if you are processing through the system also. Then if you are not processing through the system, you can just make allowance, import allowance, and you can just as Nikunj has guided you,
that you can just make a certain settings of the allowances, and we can process to the payment process. I hope you clear. Yeah, anybody else? I think, Chintan, you have already resolved all the queries of attendees in the chat. If anybody has questions, they can raise. We are here to solve. I think one poll is also there on your screen. Do you need mobile application? Please poll for this question. All are requested to please poll for this question. The poll is for 30 seconds only. All the attendees are requested to please answer this question. Yet few of audiences are not answering the question. Okay. Whatever your answer it is, please answer this poll. This will help us. Okay, it's done. So after ending this question answer session, we would like to thank Mr. Nikunj and Mr. Ravi for sharing a very nice information with us. I would also like to thank all the attendees who invested their time with us, who shared their poll with us. I would also like to announce the next webinar. So our next webinar is on training module on 12th February 2020. 12th May, I'm so sorry, 12th May 2020, that is on Tuesday. Information for the webinar will be shared with you via WhatsApp, email, and other communication sources. Looking forward to meet you again in the next webinar. Further to this, all the attendees can mail their queries on feedback@orangewebtech.com. If anybody has feedback related to webinar, like what kind of language we should use in the session and what kind of topic we should go on for the session, so you can address these queries and feedback in the feedback@orangewebtech.com. We will share this to our internal teams. Once again, thanks to all the attendees for joining the session. Please be at home and be safe with your loved ones. Thank you so much for attending the session. Yeah, thank you. Thank you very much.